on, yes, I'm set. Assalamu alaikum everyone. Please ensure that your mics are muted and आपकी वीडियो भी आपकी जो है जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे then we will allow you to open your videos. Assalamu alaikum, everyone. Am I clearly audible and visible to all of you? Please give me a thumbs up. Okay, I think I am clearly audible and visible. Okay. Assalamu alaikum, everyone. I am Lubna Imran, and I welcome you all in the most awaited talk show in which I am going to highlight the important and the most needed topic to be discussed in front of the teaching fraternity and all the educationists who are being the part of the sector in different capacities. First, I would like to begin the event with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. I welcome you all to the most awaited insightful talk on CPD paradigm shift and the challenges for the teachers today. Now, I would like to take an honor to introduce Ms. Rafia Mudassir, a well-renowned and highly experienced educational leader, coach, counselor, and a social welfare activist with an immense working experience of around 3 decades. She is an alumni of Alma Mater Habib Girls School and Higher Secondary School. She has earned the Feather of Honors not only in a teaching faculty, but as a training and management icon of the City School, Karachi and Quetta for 15 years. She has been the strong pillar of professional development department at Beacon House School System by conducting the trainings for teachers, schools, head, and coordinators. She has a vast experience of working as a teacher leader in the most extensive program for the government of Punjab and Sindh as well. Ms. Rafia Mudassir currently serving as in the educational sector and society as the founder and a managing director of Nurul Huda Foundation, which has the aims to serve the teachers, students, and the women in terms of awareness, guidance, and empowerment through structures and capacity building programs. Today, she is here as a part of the insightful talk show and a webinar about the continuous professional development program for teachers as the president of Pakistan's Teacher Forum Sindh. So I am welcoming Ms. Rafia Mudassir to give an honor to me. We are highly grateful to you. Assalamu alaikum, Ms. Rafia. Walaikum salam. Thank you so very much, Lubna, for the introduction. And Lubna herself is in the CPD process. So I actually requested her to be the host so that she's able to raise the relevant questions and then we answer them step by step. So thank you, Lubna, for taking up this challenge of actually hosting this program with me. And I hope all the teachers are going to benefit from the details that we are going to share. Because मेरे पास ये बहुत सवालात आ रहे थे, बहुत अरसे से आ रहे थे, और I thought कि एक awareness session बहुत जरूरी है, where they were asking कि हम क्या training करें, कहाँ से करें, is it accredited, is that platform registered or not registered. So we will be guiding them today about this so that the teachers can all decide in a judicial manner that what they actually need to learn, किस चीज की उन्हें ट्रेनिंग चाहिए और कौन सा इदारा है जो एक्चुअली वो ट्रेनिंग जो है दे रहा है और कहाँ से उन्हें जो है सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं. Yes, thank you so much, Ms. Rafia, to join us. In this session, we are discussing about some very crucial questions and misconceptions about the continuous professional development or the CPD. And this is very beneficial for all the early year teachers, Montessori directors,
subject-based subject experts and the educators, academic coordinators, head teachers, and educationists. So we will start with the very basic question about the conceptualization of CPD, because as we have noticed by the registration forms that only 60% of the teachers or the educators and educationists know about the CPD programs and the CPD evaluation and maintaining their CPD records. So the remaining 40% doesn't know about the CPD or any idea about the continuous professional development in the field of education. So this session is very useful. This talk is very useful as we have an expert, Ms. Rafia Mudassir. So the first basic question, Ms. Rafia, as I am a big follower of the theory of Michael Fullan and about the educational change. एजुकेशनल चेंज के बारे में बहुत बात करते हैं माइकल फुलन के जो जितनी भी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके रिसर्च पेपर्स हैं. As I know that you already have an experience about the reading about the Michael Fullan and the theories. उनका एक बड़ा क्लियर पाथवे है कि हम ये कहते हैं कि किसी भी उसमें जब चेंज लाना है या पैराडाइम में जब चेंज आ रहा होता है, द फर्स्ट स्टेप विल बी द इनिशिएशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद आखिरी स्टेज पर आकर वो चीज जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर आकर इम्प्लीमेंट होती है. द फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन. सो एज टू इनिशिएट दिस टॉपिक, can you please elaborate a little bit about the personal development and the professional development? क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेशन फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, लर्निंग भी है, सब कुछ है, लेकिन जब ये डिफरेंशिएशन को समझने की बात आती है अबाउट द पर्सनल डेवलपमेंट एंड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, so what is the difference and where do they start or where should I start? जी Ms. Rafia. Okay, so first of all, continuing professional development for teachers is a must now, since paradigms have changed. There is a total shift. और वो हमने experience किया during the pandemic period, where we went from normal classroom situations to online, and there we had to actually immediately develop our skills के integration ICT पे कैसे करें, online कैसे करें, and then कुछ अरसे के लिए स्कूल खुले तो 2 days a week जा रहे थे, तो हाइब्रिड एक मॉडल था. सो दैट इटसेल्फ एक्चुअली इनिशिएटेड अ नीड फॉर डेवलपमेंट. अब उसमें पर्सनल डेवलपमेंट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर ओन पर्सनल स्किल्स, and professional development is related to what is required in your professional setting. For example, the institutions where I have worked, उन्होंने जब भी कोई नई चीज initiate की, there was always a training before we implemented something new, whether it was a new curriculum, whether it was ICT integration, for example, whether it was robotics, whether it was any other subject or anything that was being introduced in the school. So we were always given a training. तो ये है कि वो I consider myself lucky that I was in systems which had a professional development department. हमारे जो बाकी schools हैं, बहुत सारे schools ऐसे हैं जिसमें professional development department नहीं होता. It is the principal who is actually the person who develops teachers. अगर वो वाकई इतनी visionary हैं और वो खुद जो है trained हैं, तो usually छोटे schools और setups में principals खुद कर रही होती हैं. Now, personal development relates to our skills. This may be rapport with colleagues, it may be rapport with students, it may be ICT skills. आपको word use करना नहीं आता, तो ये आपकी अपनी personal lacking है. Maybe you didn't get a chance to, but in schools now, so you have to develop your ICT skills to be able to do your duties as a professional. So ये वाले जो चीजें हैं ये सारे पर्सनल. अब कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज रीजनल मैनेजर ट्रेनिंग इन अ रेनाउंड स्कूल, सो देयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड LMS. उसमें जो इवन प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स थी, जो डेटा स्टाफ का था, उसमें वो एंटर करना होता था, तो आई हैड टू लर्न दैट. इन द सेम वे द सेकंड सिस्टम वेयर आई वाज वर्किंग, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया एटलस के नाम से. So that was an LMS where the learning of both students and teachers was being maintained. कि किसने क्या किया है. So in that you had to learn that software, how to operate that or how to use that software. So that is a professional requirement. लेकिन जो basic skills हैं वो personal उसमें आते हैं कि वो आपके कैसे हैं. अब for example you find it difficult to present publicly, आपकी अंग्रेजी कमजोर है,
या आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, तो दीज आर पर्सनल स्किल्स दैट यू नीड टू डेवलप एज अ टीचर, एंड फॉर दैट यू नीड टू फाइंड वेज कि आप इसको कैसे कर सकती हैं. तो पर्सनल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं वो हम खुद से अपने सेल्फ लर्निंग के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, or we can take help of peers to develop that. But professional development is related to anything, a certification, a diploma, or some training that you are given in a professional setting. In certain cases, you are required to submit assignments. In certain cases, you have to go back and implement. जैसे अभी आप कह रही थी, initiate, implement. So once you have been oriented about a new system, new technique, new strategy that the school has adopted, you go back and implement, you report the problems you're facing, you get more support on it, you get mentored, you get coached in certain, for example, presentation, aapne professional setting mein aapne leadership skills hai, for example, so you may be coached about it, how to develop leadership skills in students. Then uske baad phir jab wo jaake internalize ho jata hai, then it becomes a part of your personality as a teacher, as an educator. और यहाँ पे ये वाली चीज भी मुझे थोड़ा सा समझाने की जरूरत महसूस होती है कि when you are teaching a particular level or subject, so you are grade 5 English teacher, or you are a grade 6 science teacher, or you are an O-level mathematics teacher. So till then you are a teacher, and when you actually do some professional training like a B.Ed or an M.Ed or any other qualification from abroad, क्योंकि वहाँ B.Ed M.Ed नहीं होता, वहाँ पे qualification के नाम दूसरे होते हैं, for example advanced professional studies in education, which I did. So then you start calling yourself an educationist, because you have been professionally trained to become an educationist, and now you can train other teachers too because you have a degree in education. So ये भी एक चीज है, ये भी लोग मुझसे पूछते हैं educationalist और educationalist, a little fancy for educationist only, the meaning is the same. But ये है कि जो लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं, those people should have been involved in teacher education, in policy making, writing of curriculums. And for that too, even if you are developing a curriculum, you're a curriculum designer or writer, you get training for that. वो curriculum design की एक पूरी training होती है, वो आप attend करते हैं, उसके बाद आप curriculum लिखते हैं. And then you can say, I'm a curriculum designer. In the same way, जो guidance and counseling वाले लोग हैं, वो counseling की training लेते हैं, तो तब वो अपने आप को counselor कहें, because that is a professional training that you acquire. And उसके भी दो है, career counseling, और अगर जो है psychology की तरफ जाते हैं, तो then you need to have a degree in psychology to be able to doing psychological counseling. Yes. And then it comes to psychotherapy, तो फिर आपको psychiatrist होना जरूरी है, क्योंकि वो फिर medication पे चला जाता है. तो ये जो सारे है ना terms which many people are using interchangeably and very easily, they need to understand कि जब आप educationist अपने आप को कहते हैं ना, तो फिर आपका जो है पीछे ये वाला background होना चाहिए. And anyone can ask you कि भाई आपकी क्या qualification है, क्या आपका experience है background में. So you should be able to actually answer that and stand confidently to present. Yes. In the same way, फिर ये professional development के different cycles हैं, degrees हैं, तो वो हम आगे discuss करते हैं. एक्चुअली क्रक्स ये है इस बात के कि पहले का जो दौर था, जो एक कन्वेंशनल टीचिंग मेथड जब हम लेकर आते थे, तो हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम मास्टर्स किया है, लोग ये समझते थे कि अच्छा मैंने अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, इंग्लिश में मास्टर्स किया, नाउ आई एम बीइंग एलिजिबल टू बी अ टीचर. और हमारा सिस्टम उसी तरह से डेवलप भी हुआ और उसी तरह से ग्रो भी किया. इससे कोई इनकार नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में जो भी आपके पास डिग्री है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. बट नाउ जब चेंजिंग पैराडाइम की हम बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टू गेट द क्वालिफिकेशन, गेट द डिग्री ऑफ एजुकेशन. और वो रिलेटेड होनी चाहिए आपकी एक्रीडिएशन से, जो आपकी सीपीडी एक्रीडिएशन से रिलेटेड आपके कोर्सेज हों. आप सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सीपीडी कोर्सेज करें. और वैसे तो इन हाउस भी बहुत सारे स्कूल्स में होती है, लेकिन हम अगर बात करें तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके पास एजुकेशन की डिग्री होना जरूरी है. और जो कि फिर अब इम्पोर्टेंट है, अगर आगे टीचर्स लाइसेंसिंग आती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके पास एजुकेशन की डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा आपके पास होनी भी चाहिए और उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए. और लुब्ना, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, पाकिस्तान
कि गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे जो है टीचर्स की कोर कैपेबिलिटीज और वो कॉम्पिटेंसीज का एक पूरा दिया हुआ है, सो विच is not in implementation, but once it becomes a law, it will be in implementation. So teachers should visit that and see कि कौन सी core competencies और कौन से skills आपके अंदर होने चाहिए. Standards, it's called standards for teachers. Yes. And there are standards for head teachers, so they are already there on the government website, which we should go and see and then try, aspire to actually achieve all those. नहीं, और काम हो भी रहा है काफी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें कि जो आगा खान एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, कैम्ब्रिज एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, वो फॉलो भी करते हैं उन चीजों को या उन लिमिटेशंस को, लेकिन जो टीचर्स जो हैं वो इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे कि आपने एक दफा अगर कोई डिग्री कर ली है कंप्लीट, देन अगर आप ये समझते हैं कि अब आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज को अपने आप को अपग्रेड करने की, तो एक्चुअली द सीपीडी इज फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी अब वो दौर नहीं है कि आप एक जगह पर रुक गए, बल्कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और ना सिर्फ हमने स्टूडेंट्स को लर्निंग देनी है, साथ साथ हम खुद भी लर्निंग करेंगे, क्योंकि बात वही है कि अब टीचर्स का जो रोल है वो एज ए लर्नर है, नॉट एज एन अथॉरिटेटिव। अभी जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जो पैंडेमिक आया तो बहुत सारे टीचर्स को मसला आया, दे इमीडिएटली लर्नड आईसीटी इंटीग्रेशन एंड देन दे स्टार्ट डूइंग द लेसन्स, क्योंकि वो वाला उस वक्त था कि क्या किया जाए, मतलब देयर वाज नो अदर सॉल्यूशन, दे हैड टू लर्न। एंड हैट्स ऑफ टू द टीचर्स कि उन्होंने बहुत कम अरसे में जल्दी जल्दी सीखा, अपने फ्रेंड्स से सीखा, अपने कुलीग से सीखा, and there were other people who were offering these online learning to learn these apps and that they could use in their lessons. And so that teaching and learning continued. So ye to appreciate all across the globe kiya gaya hai ki teacher community took up this challenge and immediately jo hai adapted to the required change. But now the thing is ke we have to understand that the globe and world is changing, प्रोफेशंस आर चेंजिंग, और वो बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं हमारे स्कूलों में, जब वो प्रोफेशनल फील्ड में एंटर होंगे, सो दे रिक्वायर्स नॉट ओनली सर्टेन स्किल्स व्हिच वी कीप ऑन कॉलिंग 21st सेंचुरी स्किल्स, उसके अलावा दे नीड एट्रीब्यूट्स that our teachers need to develop. So our children need perseverance, our children need grit, because they will be dealing with much more complex problems than what we faced when we entered into our professions. It was a very simple thing ke I remember and I would like to quote it, that when I joined, I was attached to one of the senior teachers who had been teaching that level for 3 years. She guided me ke softboard display kaise banne hain, she guided me ke aapne jo hai morning assembly presentation kaise karani hai, she guided me ke attendance registers को कैसे fill किया जाता है, black कहाँ use होता है, red कहाँ use होता है। तो उस वक्त तो बिल्कुल ही वो traditional conventional हमारा सब था। अब you know the attendance has also come on a click of your phone. फोन पे टीचर जो है अपने स्मार्टफोन पे अटेंडेंस लेती हैं, बिकॉज जो LMS सिस्टम है वहां पे, और पेरेंट्स को भी फॉरन से इंफॉर्मेशन चली जाती है कि उनका बच्चा स्कूल पहुंच गया है और प्रेजेंट मार्क हो गया है। एंड दैट ऑल्सो इज हेल्प, बिकॉज जो हालात हैं और जो सिचुएशंस हमारी हैं, so we needed these solutions and so they were integrated into our systems. So we cannot go back to that. And I remember कि मैं चूंकि लैंग्वेज टीचर थी, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हमें जो है ना वो ब्लू कलर का एक स्टेंसिल होता था, वो काटते थे, वो रोल आउट होता था, तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हम करवाते थे। अब तो आप यू कैन असाइन इट, एक कॉम्प्रीहेंशन सेलेक्ट किया आपने, गूगल क्लासरूम में डाला और बच्चे ने डाउनलोड किया और उसको सॉल्व किया और आपको आंसर भेज दिया। So life is much easier for teachers because the information is a click away, but the teachers need to understand what are the authentic websites, what are the authentic places from which they get this content and knowledge for their classrooms, और उन्होंने बच्चों को भी उनके अंदर भी ये समझदारी डेवलप करनी है। Exactly. So ये जो cycle yes, Ms. Rafia, सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हाउ द टीचर्स कैन डिफाइन देयर लर्निंग नीड्स, और कितना जरूरी है कि अपनी लर्निंग नीड्स को खुद डिफाइन करना। एक तो तरीका यह है कि इन हाउस जब आप काम कर रहे होते हैं आपके स्कूल्स में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको इवेल्युएट करने के बाद आपकी लर्निंग नीड्स डिफाइन की जाती हैं। एक ये होता है कि अगर आउटसोर्स आप जाके कहीं से ट्रेनिंग्स कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग नीड्स आपको खुद पता होनी चाहिए। ये कितना जरूरी है कि अपनी लर्निंग नीड्स पता हो। अच्छा, इस पे हम एक कर लेते हैं ना, द पीपल हु आर प्रेजेंट इन Zoom right now, can you all write how many of you have ever filled a teachers need analysis form in your schools? Let's see.
Yes, How many people? How many 20 people have actually filled a form where they analyze their own needs? या स्कूल ने कभी उनसे पूछा या हेड ने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है? Yes, no और never के जवाब आ रहे हैं. Never. अच्छा, बिल्कुल, every every year year. one person said yes. Yes, Kashfia said. Okay. Okay, thank you very much for your feedback. The thing is कि जब तक आप खुद ownership, another thing is of training programs जो schools में हो भी जाते हैं ना, कि in service training हो रही है या 2 training days हैं, कुछ स्कूलों में होते हैं, कुछ में 1 दिन होता है, कुछ जो है टीचर्स को भेज देते हैं और टीचर्स चले जाते हैं कि भाई नौकरी का सवाल है और मेरी ACR में जो है ना लिखा जाएगा. Again, the thing is that you are the most important person as a teacher because you are the leader in the classroom. And what you need to know is what are my needs. You should know कि मुझे for example एक topic है उसमें मसला है, उसको पढ़ाने में मसला है, explain करने में मसला है. I can actually quote examples where I guided the teachers के for example humidity है, geography का एक topic है. तो कुछ teachers को मसला आता है, उसको explain relative humidity और ये सारी चीजें explain करने में to grade 5 और grade 6 students. So what do you need? वहां पे आपको किस चीज की जरूरत है? वहां पे जरूरत है आपको कि अपने किसी पेयर से जो सीनियर टीचर है उसके साथ बैठ के सीखने की जरूरत है. So peer coaching, peer observation, these are forms of CPD that you will go to, or you will go to your head to guide you, or you will go आपको लगता है कि इतना supportive आपका environment नहीं है, so maybe you will ask one of your family members जिसको आता हो. So the thing is that you should know the exact problem कि मुझे ये पढ़ाने में मसला है, या आपको लगता है कि मैं क्लास को कंट्रोल, तो क्लासरूम कंट्रोल इज द प्रॉब्लम, तो you need to go for classroom management workshop maybe. So the generic training होती है that seldom helps many teachers. सिर्फ वो टीचर्स जो उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं, या जो उसको रेलेवेंट. एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी ट्रेनिंग की जाए उसका रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर एडल्ट लर्नर्स. जब आप एक प्रोफेशन में स्टेप इन कर रहे हैं, यू आर एन एम्प्लॉई, यू आर एन एडल्ट लर्नर, एंड एडल्ट लर्नर्स शुड हैव द मोस्ट से इन व्हाट दे आर बीइंग सेंट फॉर टू ट्रेन. So definition of the problem should come from the teacher, और अगर टीचर नहीं एनालाइज कर पा रहा तो then the head actually should be guiding the teacher that this is what you need to learn, and you can go for a training externally or in-house training वो provide कर सकती हैं. And again the thing is that we have CPD in formal and informal form both. So yes. Informal वो होता है कि आप लोग जो coordination meeting है उसमें एक दूसरे से सीख रहे होते हैं. Staff meetings again depends on the head कि वो उनको कैसे utilize करती है. Some heads actually make it a point to teach something through those staff meetings. जो daily agenda होता है, agenda के अलावा के कोई program हो रहा है उसके अलावा भी they are teaching. So if your head is visionary, then she is the one who is communicating to you. Exactly. It means, Ms. Rafia, the first step is the most important step. देखें analysis, yes. Need analysis. एग्जैक्टली वो नीड एनालिसिस. देखें आपको इन हाउस जब भी ट्रेनिंग्स होती हैं आपको सपोर्ट मिल जाती है, आपको एनालाइज कर रहे होते हैं लोग, फिर प्लस आपके पीयर जो भी आपके कोलीग्स हैं वो आपको बता देते हैं. असल चीज आती है कि जब आप आउटसोर्स जो है वो ट्रेनिंग्स कहीं से करते हैं या आप जाके परस्यू करते हैं किसी भी किस्म की डिग्री या डिप्लोमा, तो वो आप अपनी ओन पे अपनी लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस वक्त इतना ज्यादा कोर्सेज और डिप्लोमास वगैरह इतने अवेलेबल हैं कि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो आपकी लर्निंग नीड को पूरा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. दूसरा सवाल ये आता है कि एक्रीडिएटेड CPD सेंटर्स से आप कर रहे हैं आउटसोर्स, आपके कोर्सेज जो हैं वो एक एक्रीडिएटेड हैं या नहीं हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको अपनी लर्निंग नीड आइडेंटिफाई खुद भी करनी आनी चाहिए एंड बी वेरी ऑनेस्ट जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म कर रहे हैं. अगर आपसे नीड एनालिसिस करवाया जा रहा है तो यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टू इन्फॉर्म देम कि मुझे यहाँ पर ये मुश्किल पेश आ रही है, या मुझे इस चीज में हेल्प आउट चाहिए, या मुझे इस चीज में ट्रेनिंग की जरूरत है. व्हाट डू यू से मिस्टर रफिया? देखिए जो स्कूल्स हैं ना, जो जिनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, वो तो पहले आपको इंडक्शन कराते हैं. एज सून एज यू एंटर द स्कूल इंडक्शन इज गिवन. वो 2-3 दिन का हो, 3 दिन का हो. तो जो इदारों के साथ मैंने काम किया वहां पे इंडक्शन दिया गया.
even when I joined the second organization, so I was very senior trainer also and accredited trainer, but still I was given an orientation of the system so that I know कि उनके क्या rules regulations हैं, क्या change है. So as a teacher, जब आप एक नए स्कूल में एंटर होते हैं तो आपको उनकी इन्वायरमेंट कल्चर में एडजस्ट करना होता है. तो द ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन के नाम से होता है या इंडक्शन के नाम से होता है. उसके बाद जो है बेसिक ट्रेनिंग एक दी जाती है जो कि 2 से 5 साल के टीचर्स के लिए दी जाती है. अगेन इफ द स्कूल हैज अ सर्टिफिकेट कोर्स, इन माय केस आई वाज लकी कि within 3 years I was sent for that course. On the basis of the assignment I was sent on a scholarship for diploma in teachers training. लेकिन ये कि वो सारे स्कूल जो हैं इस तरह फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएटेड नहीं हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट्स हैं. इन द सेम वे लोकली हमारे तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो एक्रेडिटेड ट्रेनिंग कहें उसे या डिग्री कहें वो दी जाती है. बीएड की भी है, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, एमएड है. And then also there are other qualifications, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल पे भी है. जैसे अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा इंट्रोड्यूस किया गया था कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की तरफ से. सो इस तरह से ये प्रोग्राम और ये अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती हैं. सो आपकी क्या नीड है. एंड देन हमारे जो मॉन्टेसरी के टीचर्स हैं वो जाते हैं टू बिकम मॉन्टेसोरियन, तो वो AMIN, LMIN, अदर इंस्टीट्यूशंस हु एक्चुअली give a proper diploma. And again उन सब के जो है वो CPD hours काउंट होते हैं या उसमें पूरा दिया हुआ होता है कि 3 महीने का डिप्लोमा है, 6 महीने का डिप्लोमा है, and accordingly you get the CPD hours from that. Yes. Then I remember in my first institution हमें कहा जाता था कि 2 दिन तो इनसेट के लाजमी होते थे. एवरी अक्टूबर इन सर्विस ट्रेनिंग होती थी जो कि ना सुबह 9 से 4 जो है 2 दिन चलती थी, और उसमें हम वो सारे इश्यूज एड्रेस करते थे जो स्कूल से रिलेटेड. लाइक फॉर एग्जांपल इफ द हेड फेल्ट के क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे हैं, डिसिप्लिन इश्यूज आ रहे हैं, तो ट्रेनिंग उस पे होती थी. उनको फील होता था कि जी टीचर्स को जो है वो सॉफ्ट बोर्ड मेकिंग उनकी चेंज करवानी है, उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग चाहिए. तो उस हिसाब से इन सर्विस ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग व्हाइल यू आर इन सर्विस एंड यू आर लर्निंग व्हाट द स्कूल रिक्वायर्स, या स्कूल के टीचर्स के ग्रुप की क्या नीड है. तो उसका भी जो सर्टिफिकेट इशू होता था उसमें वो टॉपिक्स मेंशन होते थे और आवर्स मेंशन होते थे. एंड एज पर पॉलिसी द एम्प्लॉयमेंट फॉर्म दैट वी यूज्ड टू साइन वुड से दैट हर साल हमने 20 घंटे जो है ट्रेनिंग करनी है. Yes. तो वो अपार्ट फ्रॉम द इन सर्विस ट्रेनिंग वी वुड एक्चुअली बी recommended to go outside, and if the head did not recommend, then we ourselves actually to complete those 20 hours would go for trainings. तो मुझे याद है कि मेरी पहली सबसे फॉर्मल ट्रेनिंग टीचर्स रिसोर्स सेंटर पे हुई थी. नाउ टीचर्स रिसोर्स सेंटर इज क्वाइट एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन इन कराची. अब कितने लोगों को पता है यहाँ मुझे नहीं मालूम. उनकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती थी. Then the second year I was sent for the SPELT conference, and वापस आके मुझे उसको रिपीट करना था for my fellow colleagues who were teaching the same level. So I went to TRC, उनकी Bright Ideas की एक पूरी सीरीज बुक्स की होती थी, वो निकाली, एक्टिविटीज निकाली, and came back and shared, and this is how we could improve the teaching of English. So this is how in-service, in-house trainings takes place. अब ये है कि गवर्नमेंट इदारों में तो BEd MAd कंपल्सरी होता है, और उनका वो एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, PCT, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ट्रेनिंग. देन आई ऑल्सो सॉ गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी टीचर्स रिसोर्स सेंटर पे कुछ टीचर्स से कोर्सेज करवाए थे. देन इसी तरह और दूसरे इदारे हैं, अब्बास साहब हैं, पिछले 25 सालों से कर रहे हैं, उनके भी 25 साल कंप्लीट हो गए. सो इट्स टोटली फोकस्ड ऑन टीचर, और उनका भी सर्टिफिकेट वैल्यू किया जाता है. देन वी हैव ERDC सलमान आसिफ सिद्दीकी फ्रॉम पेरेंट टीचर कोर्स, उनका काफी वो पॉपुलर है और वो हर साल उसको ऑफर करते हैं. दैट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स अगेन. Yes. तो इस तरह से बहुत सारे इदारे हैं. और इंटीरियर सिंध में पाइट है आपका, फिर ये स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सेल्ड जो है वो करता है. देन स्कूल एजुकेशन फाउंडेशन के जो इदारे हैं वो करते हैं ट्रेनिंग्स. सो इंटीरियर में भी देयर आर सर्टेन, बिकॉज आई नो दीज, बिकॉज हमने तो एक वो जीता था कोटेशन हेड्स ट्रेनिंग का, एंड मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव स्कूल्स के नाम से हमने 2005 में सिंध में इम्प्लीमेंट किया था. वेयर 724 अगेन फ्रॉम द स्कूल वेयर आई वाज स्टडीइंग वर्किंग, उन्होंने CIPD उनका जो डिपार्टमेंट था उन्होंने वो जो है उसका कोटेशन बनाया था. क्योंकि जो गवर्नमेंट इदारों की ट्रेनिंग होती है, इट्स एन ओपन कोटेशन वेयर इदारा जाके जो है वो अपना कोटेशन देता है कि हम इतने दिन की ट्रेनिंग कराएंगे, ये हमारा कंटेंट है.
ये उसका total cost बनेगा and all, then you win that contract and ये. So the thing is that in सिंध में भी काफी इदारे हैं जो करवाते हैं ट्रेनिंग, और उनका ये होता है, लेकिन that is more towards the government schools. अच्छा मिस्टर रफी, यहाँ एक सवाल ये पूछना है मुझे कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैम्ब्रिज बिग नॉच स्कूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्कूल्स जो कि हमें नजर आते हैं कि जगह जगह काफी उनका नाम है, सब कुछ है. डू यू रियली थिंक कि उनके पास पूरा डिपार्टमेंट सीपीडी मौजूद है? क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसकी इफेक्टिवनेस की क्या मतलब जरूरत क्यों है कि इन हाउस जो है वो डिपार्टमेंट बिल्ड होना चाहिए सीपीडी का तमाम स्कूलों में, चाहे वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में मौजूद हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, चाहे वो चेन है स्कूल्स की. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्रेमवर्क टू डेवलप द सीपीडी डिपार्टमेंट इन हाउस इन द स्कूल्स? अगेन जो आपके बेस्ट लोग हैं और जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो ट्रेनर्स में, लाइक आई वाज आइडेंटिफाइड बाय वन ऑफ माय ट्यूटर्स. मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं ट्रेनिंग में आऊंगी, बट जब मैं पीजीसीसी कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स, आई वाज सिलेक्टेड एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट डे जो मेरा था और मुझे प्रेजेंट करना था, आई वाज अ बिट रिलक्टेंट and I told my tutor कि this is the first time I am presenting in front of 40 people and please excuse me if I make any errors. तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई ये बन सकती है, and I was then nominated and recommended to go for the diploma. But the thing is कि in-house होना जो आप पूछे नीड उसकी इसलिए है कि आप बाहर से भी सीख के आए ना, तो आपको अडेप्ट करना होता है टू द सिस्टम हियर. ठीक है, अब मेरे तो सारे फॉरेन ट्यूटर्स थे, बट वट एवर दे आर सेइंग, माइकल फुलन जैसे मैं कोट करती हूँ बहुत, उनका मैं पढ़ती हूँ और मैं फॉलो करती हूँ. But then how does Michael Fullan's theory or whatever he is teaching fits into Pakistani scenario, into the schools that I am dealing with, is what I have to work on. So that is the reason that we should have professional development. एक बंदा होना चाहिए जो टीचर्स को गाइड करने वाला हो, and usually deputy heads जो academics देख रहे होते हैं स्कूलों में, उनका ये रोल होता है ना, where they are informally through mentoring, through guidance, through coaching, they are helping the teachers develop. Because principal या जो head school होता है वो ज्यादा administrative type पे देख रहा होता है, but there are deputy heads या coordinators होते हैं, level coordinators होते हैं. तो हर स्कूल में लोग होते हैं, अगर डिपार्टमेंट के नाम से नहीं है, but there are people actually who are guiding and training the teachers, and teachers need that. As a community also, we need to support each other and learn from each other, because सीखने के लिए इतना कुछ है. और अभी तो टीचिंग जिस तरह से चैलेंजिंग हो गई है और जिस तरह से ये हो गया है, तो हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है जो हेल्प आउट करें, जिसकी जो भी एक्सपर्टीज है. एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान टीचर्स फोरम was formed 3 years back, and that is what we are trying to do कि जो बेस्ट ऑफ लोग हैं उन्हें लेकर आए. SNC को रोल आउट करना है, सिंगल नेशनल करिकुलम. तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है उनको जो है ग्रूम किया जाएगा टू बी ट्रेनर्स, टू बी एबल टू हेल्प द फेलो टीचर्स. अब मैं तो नहीं मैथमेटिक्स पढ़ा सकती, आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स पर्सन, आई एम अ लैंग्वेज पर्सन. सो आई वुड नीड हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट. सो लीड टीचर्स. फिर अगेन प्रोग्रेशन भी है कि आपने समटाइम्स टीचर प्रेफर के अगर क्लास 1 को पढ़ा रहे हैं तो अगले साल क्लास 2 मिल जाए, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो क्लास 1 से नहीं हटना चाहते बिकॉज वो उनका कंफर्ट जोन बन जाता है. But remaining in that class 1, then you should master class 1 syllabus curriculum. आपको बनाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में अगर ये किताब पढ़ाई जा रही है तो बराबर वाले स्कूल में या आपके नेबर स्कूल में इंग्लिश कौन सी या उर्दू कौन सी टेक्स्ट बुक यूज हो रही है. Exactly. So you actually become a specialist of that level and the subjects that you are teaching, और आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो CPD is not limited कि आपने ट्रेनिंग ही करनी है, आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है तभी. CPD is that you're becoming a master of whatever you are doing. So if you like doing group work, so over a year or 2, you should be able to master forming groups, group dynamics क्या होते हैं, group के लिए क्या आपने rubrics बनाने हैं, बच्चों को marking कैसे करनी है. So whatever you are trying to do in the class, चाहे वो methodology है, चाहे वो content है, so you should master that as a teacher, and that is what counts in becoming continuous that counts in continuous professional development, and teachers should be learners all their life. Yes.
यहाँ पर थोड़ा सा बस ये मेंशन करना चाहूंगी मिस रफिया, जैसे अभी आपने कहा कि इन हाउस जो स्कूल्स होते हैं वो बाकायदा सीपीडी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। सीपीडी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि डिपेंड करता है कि कौन सी वीकली बेसिस पे करानी है, कौन सी मंथली बेसिस पे, फिर बाय मंथली है, फिर हाफ ईयरली है, देन एट द ईयर एंड है, और कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो बिगिनिंग ऑफ द सेशन पे करवानी होती हैं। अब डिफरेंट उसमें डिपेंड करता है, जैसे इसमें जेनेरिक है या सब्जेक्ट बेस्ड या कंटेंट एनरिचमेंट है, ये ड्यूरिंग द सेशंस भी होंगी। इसी तरह नीड बेस्ड, जिसकी अभी आपने बात की कि नीड एनालिसिस फॉर्म कितनों ने भरा है कभी या उनसे करवाया गया है, तो वो चीज कभी भी नहीं हुई है। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कि चाहे डिपार्टमेंट किसी इस सवाल पे मुझे एक चीज और याद आ गई। काशिफ ने चूंकि ज्वाइन किया है, काशिफ जो है वो होते थे मैनेजर ट्रेनिंग इन द हेड ऑफिस वेयर आई वाज वर्किंग। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी मिनसेट के नाम से की थी, उस पे एक पेपर भी पब्लिश किया था, विच इज मेंटोरिंग इनसेट। दैट इज यू आइडेंटिफाई द नीड, देन यू आइडेंटिफाई द मेंटोर्स within the school who can guide the junior teachers, and then you come back, take feedback, and then revise the plan कि ये अचीव हो गया जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे उस मेंटोरिंग इन सर्विस के। If not, then what is the next path? So it is a continuous, जैसे कि आपने शुरू में दिखाया भी था, continuous cyclic process है, which goes on and it goes on like a spiral. Yes. ऐसा नहीं कि वो गोल गोल घूम के खत्म हो जाता है कहीं, it goes on like a spiral. यस, और वो कंटिन्यूस आपका लाइफ टाइम चलता है कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब यहाँ पे वो चीज भी, जैसे यहाँ पे सीपीडी अभी आपने पीछे मेंशन किया कि जो न्यू टीचर्स हैं, दीज आर द नोवाइस टीचर्स, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको इसलिए ट्रेनिंग कराएं कि अब अगर वो किसी दूसरे सिस्टम से आ रहे हैं और नाउ दे आर इन अ न्यू सिस्टम, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं या आपका जो सेटअप है या ऑर्गेनाइजेशन है, उस सेटअप में उनको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दे नीड द ट्रेनिंग्स, दे नीड द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम ना। तो वो चीज नॉविस के अलावा भी ज्वाइनिंग अ न्यू रोल आल्सो, इफ यू ज्वाइन अ न्यू रोल देन आल्सो यू नीड ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल आप जो है ना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन गए, आप कोऑर्डिनेटर बन गए एक लेवल के, so you need to learn कि as a coordinator what are your responsibilities, what records you have to maintain, उसके लिए क्या क्या करना है। For example, if you are observing teachers, so you should learn how to observe teachers, how to fill an observation form. So role जैसे जैसे change होता है, so lead teacher बनते हैं, subject specialist बनते हैं, coordinator बनते हैं, फिर आपका recommendation में go for management level, deputy head बनना है, head बनना है। So all these new positions require a refreshed training, a new training, so that you have a new perspective और आप फिर उस रोल में जो है जेल इन कर सकें, उस रोल की requirements पूरी कर सकें। So it's not just a change of school or change of level, it is the change of your designation within the school structure that you need another training to be able to fulfill that role. Exactly. It means promotion जैसे जैसे होती जाएगी उतना ज्यादा learning requirements जो है वो बढ़ती जाएंगी। So this is everything in house. अच्छा, इसकी अगर हम complete guideline की बात करें, अगर outsource आप कहते हैं कि अच्छा कुछ टीचर्स का ये होता है कि अच्छा आउटसोर्स भी वो लर्निंग कर रहे हैं, लाइक मी, मैं जैसे इस वक्त पीजी सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूके कर रही हूँ, दिस इज द आउटसोर्स, और अगर मैंने आईईडी से किया तो दीज आर द आउटसोर्स। आई हैव डिजाइंड माय फ्रेमवर्क फॉर द सीपीडी अकॉर्डिंग टू माय लर्निंग नीड्स। सो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो टीचर्स आउटसोर्स जाके ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए किस तरह से एक उनको लर्निंग नीड डिफाइन करनी चाहिए, प्लस उनको ये पता होना चाहिए कि उनके क्रेडिट आवर्स बढ़ रहे हैं या क्रेडिट आवर्स काउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्लस ये कि वो जो भी ट्रेनिंग्स कर रही हैं वो अकॉर्डिंग टू द लर्निंग नीड्स जो हैं वो मैच भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सो व्हाट डू यू से अबाउट दीज थिंग्स? I think all teachers should always have a pen pencil around them and they should keep on taking a note. कोई आइडिया आता है, कोई चीज आती है, तो एक तो ये आई फील दिस इज वेरी कंपल्सरी दैट वी ऑलवेज, मतलब ये कि मैं कभी ऐसा नहीं हुआ एज अ टीचर, आई ऑलवेज हैव अ pen and notepad in my bag wherever I go. It's always there in my kitchen too. It's there on my side table. तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आप कहीं पे भी कोई आइडिया आया है, फॉर एग्जांपल यू फील कि मैंने अपने स्कूल में जो है कोई नई एक्टिविटी करानी है, अब वो आपको समझ नहीं आ रही या आपने आइडियाज आपको चाहिए एंड यू आर रिसर्चिंग, सो दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड ना, कि आपने किया फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करके अगर उसकी इवैल्यूएशन लिखते हैं
कोई भी एक्टिविटी प्रोग्राम करें, जरूर उस पर रिफ्लेक्ट करें. We should all be reflective practitioners as teachers, then only we improve on our skills and our ability as a teacher. तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में रिफ्लेक्शन का बहुत रोल है, एंड यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन सेल्फ. मतलब मैं एज अ टीचर आई रिमेंबर कि कोई बच्चा अगर होमवर्क नहीं भी सबमिट करता था, उसका भी एक नोट मेरे ना प्लानर के पीछे लगा होता था, एंड आई यूज्ड टू फॉलो अप एंड फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन दैट द चाइल्ड डिड नॉट सबमिट द होमवर्क, and then think of a strategy of how to make him or her ready to do homework. कि sometimes बच्चे करना नहीं चाहते हैं, sometimes कोई और घर की problem होती है. So this is self-directed learning, that you are trying to find solutions to day-to-day problems in your classroom, and you are trying to और sometimes हमें नहीं आती तो हम अपने colleagues से बात करते हैं कि भाई ये बच्चा है, इसका पता नहीं क्या problem है, homework नहीं देता. So ये वाली चीज में you are actually learning from peers, you're learning yourself. Individual, professional, again, you feel that you need to grow a certain skill, तो आपने कोई वर्कशॉप अटेंड कर लिया, ठीक है. अब ये भी चीज समझने की जरूरत है कि वर्कशॉप क्या होता है. वर्कशॉप इज अ 1 day or 2 day event, that is a workshop, and that workshop is focused on a particular topic, for example classroom management, ठीक है. अब वो 3 घंटे से लेकर जो है वो 2 दिन का सेशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द टीचर्स हु आर अटेंडिंग इट. देन देयर इज अ ट्रेनिंग, जिसका जो है वो आपको वो 3 से 5 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, विच इज कॉल्ड अ कोर्स. Yes. A short course. The short courses are 3 to 5 days, sometimes more. Then there are more detailed courses जो 20 दिन से भी ज्यादा हो सकते हैं, महीने से ज्यादा हो सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा हो सकते हैं. तो ये चीज भी अंडरस्टैंड करें, हर चीज ट्रेनिंग नहीं है. अ वर्कशॉप इज अ वर्कशॉप, ठीक है. अ ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग, अ कोर्स, अ सर्टिफिकेट कोर्स इज अ सर्टिफिकेट कोर्स, अ डिप्लोमा इज अ डिप्लोमा, एंड हर एक की ड्यूरेशन स्पेसिफाइड होती है, और there are levels on which a certificate is issued, and there are levels on which a diploma certificate is issued. तो you should know कि आप क्या करने जा रहे हैं. आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं किसी चीज में, फॉर एग्जाम्पल अर्ली ईयर्स के लिए जो टीचर्स हैं, अगर वो फुल टाइम मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस नहीं बन रही होती तो वो शॉर्ट कोर्सेज करती हैं. So that short courses should be done from institutions where you can actually go and show your certificate कि जी मैंने early years में certification की हुई है. I know the basics of early years and that is why I'm applying in early years. Early years का तो लोग समझते हैं कि किसी certification की, किसी training की जरूरत नहीं है. Young girls go and join. Yes, and yes. I have suffered as a parent कि मुझे जाके बताना पड़ा. मेरी बच्ची जो है वो she started writing late. तो उसकी टीचर का कंप्लेन आए और वो आए, फिर मैं गई उनके पास. मैंने कहा कि इफ शी इज नॉट राइटिंग, शी वाज 4 एंड शी हैड नॉट स्टार्टेड राइटिंग होल्डिंग द पेन, और सो आई सेड कि जब तक उसकी फाइन मोटर ये डेवलप नहीं होंगी, शी विल नॉट बी एबल टू. सो प्लीज डोंट फोर्स हर, डोंट डैमेज हर मसल्स. सो द थिंग इज के we need to understand कि देखें, we are as teachers impacting lives of students physically, yes, emotionally, mentally, and spiritually. So okay, we need to understand our role and we need to understand कि हमारी क्या lacking है. सिर्फ job हासिल करके position पे आ जाना या teacher बन जाना काफी नहीं है. You have to grow yourself as an individual, as a person, as a role model for the students. And you should know कि जिस level को आप deal कर रहे हैं तो उसकी psychology भी आपको पता होनी चाहिए. तो ये सारा जो है ना self directed learning है, खुद से आपकी motivation होनी चाहिए. You should have love for teaching as a profession. You should have love for the children whom you are dealing. So automatically फिर ये आपके अंदर से होता है कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये सीख लूं, मुझे ये नहीं आता, मैं ये सीख लूं. And for that then you also should learn कि कहाँ से आपको proper qualification, accredited certificate courses मिलेंगे, और कहाँ से जो है ना वो आपने सिर्फ जो चीज एक skill सीखना है वो कहाँ से आपको मिल जाएगा. So for certain things you need certification. For example, teaching a particular level you should have. जैसे मैंने early years का तो इसलिए कहा कि early years का बहुत जरूरी है. मिस उम्मे भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है. मिस उम्मे हमारी इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट हैं और वो early years का जो है कोर्स ऑफर करने जा रही हैं from the platform, PTF platform. So all the early years teachers are welcome to apply for it and learn from her. Exactly. अच्छा मिस रफिया, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं जितनी भी ऑडियंस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप
आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर आउटसोर्स कहीं से भी कोई अप्रोच कर रहे हैं किसी कोर्सेज को, वेदर दे आर ऑथेंटिक टू इंक्रीज योर सीपीडी आवर्स रिकॉर्ड और नॉट। अगर आप कोई ऐसे कोर्सेज करते हैं कि जो, पहली बात तो आपको डिस्टिंग्विश होना चाहिए, आर यू परस्यूइंग द कोर्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि सीपीडी आवर्स only for professional development from the authorized CPD centers. So ये बहुत जरूरी है कि आप एक तो लर्निंग नीड आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पास ऑथेंटिक सीपीडी सेंटर्स से सर्टिफिकेशंस हों, आप वहां के कोर्सेज करें, ताकि आपके सीपीडी आवर्स जो हैं वो, चाहे आप सेल्फ मेंटेन कर रहे हैं, तो वो चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए कि इसका बेनिफिट आपको आगे जो है वो आपके प्रोफेशन में क्या आएगा। सो आई थिंक दिस इज द थिंग कि सिलेक्शन बहुत जरूरी है अपनी लर्निंग नीड्स के हवाले से, कि आपने क्या सीखना है और इसका आपको क्या बेनिफिट आएगा आगे। एम आई राइट मिस रफिया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आइडियल सीपीडी प्लान? अगर किसी भी टीचर को, एजुकेटर, एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनलिस्ट जो भी हैं, उनको अपने लिए, अच्छा यहाँ एक चीज और बताने का मकसद ये है कि चाहे वो टीचिंग फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो हेडमिस्ट्रेस हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हैं, दे ऑल नीड द सीपीडी एक्रीडिएटेड प्लान्स फॉर देमसेल्व्स, और उनको हमेशा ये लर्निंग प्रोसेस से गुजरना चाहिए। जैसे मिस रफिया ने कहा कि अगर आपकी प्रमोशन होती है और आप अपग्रेड हो रहे हैं, तो अब आपको नई अपनी पोजीशन के हिसाब से जो है वो आइडियली जो आपके लिए बेस्ट हो। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आइडियल सीपीडी फॉर एनी पर्सन फ्रॉम द सेक्टर ऑफ एजुकेशन? There is no ideal CPD, Lubna. The thing is कि हमें अपनी नीड्स पता होनी चाहिए, and then we should keep on learning. अब आप एक कोर्स पे गए लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हुए वहां से, वो उन्होंने जो कंटेंट देना था अपने हिसाब से दे दिया, इट्स ऑन अस एक्चुअली। और यही मोस्ट ट्रेनिंग फेल्स बिकॉज हम आके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ कि आई इम्प्लीमेंटेड ऑल माई ट्रेनिंग एंड दैट इज वाई आई एम वेयर आई एम। और मैंने उस सबसे हर चीज से सीखा। मे बी आई एम अ बॉर्न रिफ्लेक्टर, तो मैं हर चीज पे रिफ्लेक्ट करती हूँ, सोचती हूँ ये कहाँ पे फिट इन करता है, कहाँ पे नहीं करता। अब मैं उसको क्रिटिक करती हूँ। आई डू नॉट एक्सेप्ट व्हाट एनीवन इज सेइंग। Even the books that I read, I look at it very critically. So as adult learners, मैं समझती हूँ कि teachers के अंदर इतना confidence होना चाहिए that they feel कि उनकी thoughts जो हैं they are authentic and then they should find answers to their questions. And since we are adult learners, तो हम अपना path खुद set करते हैं. So we should be setting our own path. We should not get influenced कि मेरी दोस्त जो है उधर जा रही है तो मैं भी चलूँ। तो आप पहुंच गए उधर जबकि उसका ना फायदा, so you're wasting your time and energy. Yes. You should actually be following your own path. For example, आप language teacher हैं तो language की trainings आप attend करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें दूसरे लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा workshops में जाएं, conferences में जाएं, research पढ़ें। Research हमारी teachers नहीं करती, reading नहीं करती. This is also very very important. Unless you read, आपको पता नहीं होता कि दूसरा बंदा जो आपको सिखा रहा है, सामने वाला, वो आपको सही भी सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा। तो मैं ये समझती हूँ कि टीचर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग और विजडम होना चाहिए कि दे नो कि हु इज जस्ट ब्लफिंग देम एंड हु इज एक्चुअली ट्रेनिंग देम एंड मेकिंग देम अ बेटर टीचर। तो ये भी एक है कि द टीचर्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और अपनी नीड्स के मुताबिक ट्रेनिंग अटेंड करें, ताकि आप उसको इंटरनलाइज कर सकें, उस पर आप सवालात उठा सकें, उसको आप जो है ना जाके इम्प्लीमेंट करते हुए जो है आपको परेशानी नहीं हो। So sometimes teachers feel that they just wasted the time, कुछ फायदा भी नहीं हुआ और उनको जो सीखना था वो सीख भी नहीं पाए। Exactly. और the waste of time and money as well, because बाज़ दफा ये होता है कि आपकी जो फील्ड है, आपका जो सेक्टर ऑफ वर्किंग है, उस हिसाब से वो सपोर्टिव नहीं है। तो आई थिंक कि जब हम हर चीज को एक हिसाब से, हम अगर क्लोथिंग में भी देखें तो हम अपने ट्रेंड के हिसाब से या हम अपने मौसम के हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं। तो व्हाई नॉट फॉर द लर्निंग? हम जो लर्निंग कर रहे हैं, अब हमने एक फील्ड सेलेक्ट कर ली है कि जब हमने मास्टर्स किया था, फिर देन हम उसके बाद एजुकेशन में आए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन इज वेरी नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द लर्निंग नीड। So I think this is the whole story about the learning needs. Identify the learning needs and then plan your CPD program, or your learning need should match to your trainings. कि आपने किस तरह से उसको, और ये सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, सारे प्रोफेशंस की अब तो जरूरत बन गई है। और टीचिंग की ज्यादा इसलिए है कि हम जो हैं सारे प्रोफेशंस को we are providing the resource persons. So when we are developing those resource persons, तो हमें खुद भी जो है ना इतना ज्यादा
अपने आप को डेवलप करना चाहिए and become a better teacher every day. So there's every day we should learn something and implement it. And again, it's not necessary कि आप किसी कोर्स पे ही जाके कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी environment से, अपने क्लासरूम से, अपने स्टूडेंट से हम कितना सीखते हैं. Exactly. और थोड़ा सा इस चीज को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी मिस रफिया, ये तो रिकमेंडेशंस है हमारी तरफ से, थोड़ा सा एक गिव अवे है, जो एक ऑथेंटिक सीपीडी सेंटर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जाहिर है मेरे पास इस वक्त जगह की और वक्त की कमी थी, तो आप अगर कोई और रेकमेंड करना चाहें, लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इसके. दे मस्ट कंसल्ट दीज वेबसाइट, दे मस्ट कनेक्ट विद देम, और अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स. सबसे बड़ी बात यह कि अपनी लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई जरूर करें. और मिस रफिया, आप इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ कहना चाहेंगी कि क्या सीपीडी एक्रीडिएशंस हैं जो हम ऑनलाइन या ऑन साइट दोनों में परस्यू कर सकते हैं फॉर द टीचिंग पर्पस, फॉर इन एन एजुकेशन? इसमें आई थिंक कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस मिसिंग हैं. कैम्ब्रिज भी इशू कर रहा है वो, अगेन द स्कूल अप्रोचेस, और वो दे से दैट वी आर इंटरेस्टेड इन योर कैम्ब्रिज डिप्लोमा फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, कैम्ब्रिज डिप्लोमा फॉर टीचिंग विद आईसीटी, या कैम्ब्रिज डिप्लोमा इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. So then they select a resource person from within the school and they are trained and then they come back and वो जो course या content बनाते हैं वो as per the needs of the school बनाते हैं. Then there is another Oxford है, Oxford University Press करवाता है. मुश्ताक साहब, आप kindly अपना ये mute करेंगे please? You're speaking on phone or something, और आपकी आवाज से हम disturb हो रहे हैं, please. ओके, सो ये हो गया. फिर उसके अलावा मैंने जैसे कहा TDC है, टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर, हैज बीन देयर फॉर 25 इयर्स. उनका MTC प्रोग्राम जो है इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रोग्राम्स वेयर मेनी टीचर्स हैव डेवलप्ड इनटू वेरी रिसोर्सफुल टीचर्स एंड आल्सो गॉटन प्रमोटेड एज हेड्स, क्योंकि उसमें ये कॉम्बिनेशन है टीचर लीडरशिप एंड ऑल. तो टीचर लीडरशिप जो है वो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी ऑल्सो हैव बाहर से भी जो है बहुत सारे इदारे जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं, बट जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस होती हैं दे आर अ बिट ऑन अ हायर लेवल, के उसकी जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में होती है और वो या पाउंड्स में होती है. तो वो हमारे जो टीचर्स हैं जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, दे शुड स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट द लोकल, बिकॉज उस लेवल पे भी जाना, आपने अप्लाई किया लेकिन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, बिकॉज उस लेवल तक जाने के लिए जरूरी है पहले आपने बेसिक ट्रेनिंग खुद यहाँ लोकल ट्रेनिंग की भी होगी. ओके मिस रफिया, बस इसको थोड़ा सा हम रैप अप की तरफ जाते हैं. इंशाल्लाह हम इससे कंटिन्यूटी में मजीद इससे आगे भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे. जी, सवालात आई थिंक आना शुरू हो रहे हैं, सो वी बस यहाँ पर ये एक मुझे लास्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि एज द बिग फॉलोअर ऑफ माइकल फुलन, देयर इज नो स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट टू ट्रांसफॉर्मेशन. अगर टीचर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो शॉर्टकट्स अप्रोच पे नहीं, बल्कि अगर आप कोर्सेज भी अटेंड कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स कि आप जो है वो कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता कि आप अचानक से कोई मैजिक बैंड हो और आप अचानक से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या लर्निंग आपके अंदर आ जाए. यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट, और उसका एक ड्यूरेशन होता है प्रॉपर जब आपके ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें और फिर देन रिफ्लेक्ट भी करें और उस चीज को आगे भी बढ़ाएं. आप क्या समझती हैं कि आने वाले सालों में, जो कि हम देखते हैं कि अब टोटली जो हम जेन अल्फा की बात करते हैं जो अब हमारे लिए स्टूडेंट्स के तौर पर मौजूद होंगे, आप क्या समझती हैं कौन सी सीपीडी कोर्सेज की प्रायोरिटीज इन हाई नीड इन अपकमिंग ईयर्स? सो कैन यू प्लीज सजेस्ट, देन फिर हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे चले जाएंगे. The global trend is moving towards deep learning. Deep learning means developing the attributes and skills that the students need to find success in future, because everything is uncertain. अब मेरा बेटा इस वक्त O level कर रहा है, 15 साल का है, तो 10 years down the line, I don't know उसका क्या, कौन से प्रोफेशन में वो जाएगा, because many of these professions are going to die down. So we cannot even say कि उस वक्त वो क्या प्रोफेशन होगा जिसमें वो स्टेप इन करेगा. तो हमें बच्चों के जो है कोर स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है, और उनकी जो है एट्रीब्यूट्स ऐसे बनाने हैं कि दे बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स themselves, and that is only possible when the teachers become lifelong learners themselves and keep on developing themselves as teachers. फिर उसके बाद ये है कि the generation gap is becoming lesser and lesser with each passing year, and आगे जाके अभी अल्फा है, अल्फा के बाद जो दूसरी जनरेशन आने वाली है,
तो द Yes. गैप इज सपोज टू बी ओनली ऑफ अ फ्यू इयर्स, 2-3 इयर्स का रह जाएगा। मतलब पहले जनरेशन गैप होता था ना, जहाँ पे आप समझते थे कि मुझसे जो 10 साल बड़ा है वो मेरा बहुत अच्छा मेंटोर है, उसका 10 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड वी वुड लिसन। अब जो हमारी जनरेशन है उसमें एक चीज और भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि द यंगर जनरेशन हैज मोर स्किल्स देन अस, दे आर born into the digital age, they are digital natives, whereas we actually migrated or we learned it when it came upon us. तो ये जो बच्चे हैं और जो यंग टीचर्स हैं हमारे, उनके लिए भी जो है वो हाउ टू कोप अप विथ प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम जो कि अब आ रही हैं, डिप्रेशन एंड एंजाइटी बिकॉज ऑफ टू मच स्क्रीन टाइम, then lack of focus and attention of children in the classroom because they are distracted. So how to keep them engaged in learning is very, very important, and that will only be possible when you are teaching them in a meaningful way, और आप उनकी needs जो है ना उनको satisfy कर रहे हो as a teacher, then only you will be able to actually become effective teachers in the classroom. And for that आपको अपने attributes, अपने skills develop करने की जरूरत है. So communication, collaboration, critical thinking, citizenship, we need to understand global citizenship. Yes. Creativity, yes. Be creative. वो छापा टाइम खत्म हो चुका, क्योंकि अब बच्चा जो है 1 मिनट में गूगल कर लेता है और वो आपको बता देता है कि मिस आप गलत कह रही हैं, ये ऐसे नहीं है. The most important is volunteership. Yes, so as well. creative and keeping a tap on. जैसे मैंने बताया ना कि मैं उस जमाने से टीचर हूँ जब नीले रंग का स्टेंसिल काटा जाता था कट पेन से, और हम उसको करते थे, फिर वो रोल आउट होता था स्टेंसिल मशीन में, फिर हम जाके क्लास में कॉम्प्रिहेंशन कराते थे. तो आई हैव कंटिन्यूसली अपग्रेडेड माई सेल्फ फ्रॉम देयर. फिर हमने वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आया, दैट वॉज यूज्ड, उसमें स्टेंसिल लगता था. फिर उसके बाद आपकी प्रिंट आउट्स आना शुरू हो गए, प्रिंटर्स आने शुरू हो गए. So मैंने ये सारे वो टाइम देखे हैं. So maybe what we are using now will become obsolete. And with Chat GPT जो कि अब आ गई है और वो experimental phases में, please go and look it up. तो आपको पता चलेगा कि आपका जो काम है as a teacher कितना complex होने जा रहा है. So if you are not aware of the recent trends, then you will not be able to survive as a teacher. So continuous development is of utmost importance. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सवाल ले लें कोई. अच्छा मिस रफिया, 1-2 सवाल तो मेरे पास चैट में है, if you allow me to ask. जी जी बिल्कुल. Okay, the question is from Sana Sheikh: how to socialize today's child because they are shy and spending time on screen. And the next question is that please from Anwar Zaib Sahab, please let us know which department of government level giving accreditation to these certified institutions. भाई आईडी तो खुद आगा खान यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, उसके बाद दूसरे जो हैं कुछ HEC से अफिलिएटेड हैं, कुछ जो हैं वो आपकी स्किल्स काउंसिल से अफिलिएटेड हैं, टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड से अफिलिएटेड हैं. तो आप उनके इदारों पे की जो वेबसाइट्स हैं उस पे जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं. उन्होंने मेंशन किया हुआ होगा कि दे आर अफिलिएटेड विद विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. अच्छा, उसके बाद हाउ टू सोशलाइज, उसके लिए जरूरी है कि वी स्पेंड टाइम, वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन फर्स्ट, क्योंकि हम एज पेरेंट्स भी मोस्टली आर ग्लूड टू आवर मोबाइल्स एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन टू लिसन टू देयर डे टू डे क्वेरीज एंड इश्यूज. सो हम स्क्रीन टाइम को जो है वो लिमिट करें बच्चों के. वी कैन नॉट स्टॉप इट बिकॉज दैट इज द नीड और द फ्यूचर, बट द थिंग इज कि हमें उसको लिमिट करना पड़ेगा और बच्चों को जो है आप लेके जाएं इन नेचर, इन प्लेसेस वेयर दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल. इफ यू डोंट डू दैट देन दे विल रिमेन शाय एंड दे विल रिमेन क्लोज्ड इन देयर ओन रूम्स. वो बाहर भी नहीं निकलते ना, कोई मेहमान घर में आए तो बच्चे बाहर नहीं निकलते. Chat GPT is not reliable source right now. जी कश्रिया, बट द थिंग इज कि उसी पे बहस हो रही है ना अभी कि जिस तरह से उसको लाया जा रहा है, या तो वी नीड टू डेवलप द ह्यूमन इंटेलिजेंस टू एक्चुअली फाइट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज टेकिंग ओवर आवर लाइव्स. Yes. So we need to remain human and develop that the human side of our children too. कि human intelligence पे काम की ज्यादा जरूरत है as teachers, and that is why teaching and the role of the teachers has become very, very important in these times. क्योंकि आप ही हैं उनके सामने ना जवाब देने वाले, उनको बताने वाले, उन्हें गाइड करने वाले. तो अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू गाइड देम.
Yes. आतिफ आप हैं? इज आतिफ हियर? ये छोड़ गए वो? हाँ आतिफ हैं। आतिफ, वुड यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स? हम क्लोज कर रहे हैं। Atif Saab is the Central General Secretary of PTF. So if he wants to say Atif Saab, something. you can unmute, please. Yeah. Assalamu alaikum, Madam Rafia. How are you? Walaikum salam. Thank you so much, Atif Saab. Alhamdulillah. First of all, तो आपको सॉरी कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ होम था, तो बस लेट पे ही एंट्री हुई कर सका। तो बाकी इट्स वेल गोइंग फ्रॉम सिंध पीटीएफ टीम, और सबसे ज़्यादा तो मैं अप्रिशिएट मैडम रफिया को ही करूँगा कि वो अपनी टीम को द वे एंगेज करती हैं एवरी टाइम। एंड मैडम रफिया पाकिस्तान टीचर्स फोरम का वो सारा है कि जो वेरी फर्स्ट डे से पीटीएफ के साथ खड़ी हैं, और मुश्किल हालात में भी खड़ी हुई और आसानी में भी, और जिस तरह उन्होंने पीटीएफ को खड़ा किया, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। थैंक यू सो मच आतिफ साहब। और वो यही है कि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो हमने कहा कि इस साल का जो भी कैलेंडर है तो हम स्टार्ट ही सीपीडी से करें, ताकि लोगों को, टीचर्स को इसकी इम्पोर्टेंस पता चले और वो सीखें। तो इसलिए ये टॉपिक आज उठाया है। फिर इंशाल्लाह हम लोग का मंथली कैलेंडर आपके पास है, हम इसको लेकर चलेंगे। और बिल्कुल मैडम रफिया, आप मुझे अच्छा, ये एक साहब हैं जो कौन है जो लिख रहे हैं कि NSSTP, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? It's National Professional Standards of हाँ Teachers. जी, फॉर टीचर्स। Yes. जी जी बिल्कुल, वही मैंने उसी का रेफरेंस दिया था कि वो मौजूद है। टीचिंग स्टैंडर्ड्स भी मौजूद है, हेड टीचर्स का स्टैंडर्ड भी मौजूद है। तो जो लोग भी उसको जाके देख लें तो उससे ही आपको काफी सीखने को मिलेगा कि एज अ टीचर आपका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए पाकिस्तान में। एंड इंशाल्लाह वी आर वर्किंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीटीएफ कि ये जो लाइसेंसिंग ऑफ टीचर्स और ट्रेनर्स है, इसकी बातचीत मैंने की है मैडम फौजिया अरशद, सेनेटर फौजिया अरशद से। सो वी विल वर्क ऑन इट, एंड इंशाल्लाह ये वाली जो एक लोगों को कंफ्यूजन है ना कि भाई सर्टिफिकेशन और ये सब, सो ये जो चीजें हैं ये फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। द लास्ट क्वेश्चन मिस रफिया, वो काफी दफा रिपीट हो गया है कि हाउ डू यू से टू अपलिफ्ट द एजुकेशन इन रिमोट एरियाज स्कूल, कि वहां पर तो इस तरह की ट्रेनिंग्स का कोई इंतजाम नहीं है या किसी भी किस्म की असेसमेंट एंड इवैल्यूएशंस नहीं हो रही, तो आप ये क्या समझती हैं कि उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि टीचर्स को क्या करना चाहिए? उसमें ये है कि देखिए अब बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, और उसके लिए आप लोग जो हैं वो करें। आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यहाँ पीटीएफ सिंध से तो हम बहुत सारे वेबिनार्स और ऑनलाइन कर रहे हैं। पीटीएफ की ही जो है टीम्स हैं सारे प्रोविंसेस में हैं, और वो रिमोट एरियाज में भी करेंगे। आतिफ मौजूद हैं और सुन रहे होंगे। तो ये है कि वी विल रीच आउट टू ऑल द प्लेसेस, रिमोट एरियाज में भी और इंटीरियर में भी। मैं जैसे सिंध की प्रेसिडेंट हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर रिसोर्स पर्संस इन इंटीरियर सिंध, जिनको हम ट्रेन करें और फिर वो आगे जाके इसको कैस्केड करें। क्योंकि देखिए एक बंदा हर जगह नहीं पहुंच सकता, सो हमें लोकल लोगों पे डिपेंड करना होता है। उसी में से वी हैव टू पिक अप पीपल who have a strength in training and train them, and then they can take forward this training, और उसकी जो है मॉनिटरिंग और वो हम कर सकते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी सिंगल नेशनल करिकुलम की जो ट्रेनिंग्स हैं वो करने जा रहे हैं। वी आर सिलेक्टिंग रिसोर्स पर्संस, सो यू कैन ऑल कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम सिंध, एंड फॉर अदर प्रोविंसेस आप जो है मैडम उम्मे भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद से वो हैं, आतिफ मौजूद हैं। आतिफ जो है वो ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो आप, और अमीर ज़ेब भी यहाँ मौजूद थे, मैंने देखा जो प्रेसिडेंट है केपीके के। तो आप जो हैं इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो ये लोग जो हैं आपको बता देंगे कि कौन रिसोर्स पर्सन है। एंड केपीके में तो हमारी जो सेंट्रल टीम है, दे हैव बीन रीचिंग आउट टू स्कूल्स एज फार एज सवात और दूसरे इलाकों में भी ये लोग गए थे। तो सिंध का हमने अभी लिया है स्टार्ट। इंशाल्लाह दुआओं की भी जरूरत है, आप सब लोग दुआ करें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और ये जो कैलेंडर है ये इंशाल्लाह लुबना जो है वो पीटीएफ पे उसको बना देंगी, तो हम पीटीएफ के उसमें पेज पे डाल भी देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि सिंध वाले जो हैं वो कब कब कर रहे हैं। सो इट्स लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ इंशाल्लाह। लेकिन ये कि कभी ऊंच नीच हो सकती है, आगे पीछे डेट हो सकती है, तो हम एक कैलेंडर टेंटेटिव जो है वो डाल देंगे आपके रेफरेंस के लिए ताकि आप ज्वाइन कर सकें।
Exactly. Ms. Rafia, I think it's time to wrap up. और काफी सारी queries हैं. Please do contact us on the forum of Pakistan Teachers Forum Sindh, or you can contact me through my Facebook page or Ms. Rafia's Facebook page at Nurul Huda Education. So inshallah ta'ala, we will address this topic again because this is just the beginning. So thank you so much, Ms. Rafia, for joining us. And it's really a fruitful and insightful views from yourself, from your side. Or I think सब लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा. So I'm signing out from the platform of the Pakistan Teachers Forum Sindh. And again, I'm very thankful to Ms. Rafia for joining us and give us suggestions which are really worthful for the teachers. Thank you so Thank you much. everyone for joining, and I would request कि आप लोग जो हैं जहाँ पे ये वीडियो लाइव जारी है तो उस पे जाके अपने सवालात डालते रहिएगा, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम रिप्लाई कर दें. So एक पिक्चर आई होप किसी ने ले ली है, somebody from because I am not on the phone, तो ये मेरे पास तो नहीं आएगी, तो एक पिक्चर प्लीज ले लीजिए कशफी और anyone from the team from their mobiles के जो participants हैं इनकी I think 2 या 3-4 पिक्चर्स बनेगी and then we close. And thank you everyone for joining me. If any type of help or any support or any guidance, you can contact us.